And a very warm welcome to all of you. It is my pleasure to be among all of you celebrating sound, voices, community engagement while promoting National Broadcasting Day. Community radio stations have this uniquely inherent feature of engaging with their audience in their own earthy styles and talking about issues that really matter to that community. It is my pleasure to talk to all the winners of Poshan Ghar Award about their innovative ideas in creating and connecting communities to create a holistic nutritional environment and ecosystem. So, congratulations, all of you. Let us give all of them a big round of applause. National Health Family Health Survey 5 states that it is not just important to address the issues of food sufficiency, but it is also important to address the issue of nutrition deficiency. And on this question, on this topic, can the community radio stations take a lead in fulfilling this nutrition deficiency? Can they help in improving the nutrition figures? To know more about this, we have on our panel Ms. Gayatri Usman from Radio Kadal Osai, Tamil Nadu, Ms. Radha Shukla from Waqt Ki Awaz, Uttar Pradesh, Arushi from Radio Madhuban, Rajasthan, Asha More from Vasundhara Vahini, Maharashtra, Kirandeep Kaurji from Radio Bundelkhand, Madhya Pradesh, and Mr. Krishna from Apna Radio. I'm really excited to know about their innovative ideas. How about you? Are you excited? So let's start. Let's start hearing from them. Gayatri Usman ji, आप अपने आइडिया के बारे में बताएं, प्लीज. Greetings to everyone. Good afternoon. I come from a place called Rameshwaram in Tamil Nadu, which is there the down south, tip of India, you can say. We are located in an island, so we cater for fishermen community and tourism and the livelihood surrounding around that fishermen and the tourism. So this our idea is about a competition for the mothers of children, school children. Because when we say that nutrition lack or nutrition thing, we cannot force the children to eat whatever we give because the taste is important, the quality is important, everything is important. But when a problem is there, what we did is, as Kadalo said, we went into the community and we asked the feedbacks from the mothers. Like, why are they not able to give nutritious foods to their children? That is because they said 3 points. One, it is costly to buy millets or to buy other nutritious stuff. Carrots are high in price, and either they will be able to buy onions or tomatoes and they make some sabji and they give, or dal. So the nutritious foods, the elements of the nutritious food, the ingredients and all is costly. And then the second thing is lack of time. They are not able to cook before they go to the school. And the third thing is they are not able to prepare the food in a tasty manner because everyone has a thing in their mind, healthy food are not tasty. So these 3 points we took and we wanted to find a solution for that. So what we did is like we can conduct a recipe contest for the mothers of the children who are studying in the government schools and the normal schools. In a school, if we conduct a competition and if the mothers bring their recipes along with the cooked food, so we can taste and we can judge and we will get 10 recipes per radio station. That is 10. We will conduct a school competition in 10 schools around our CR and we will get 10 winners. And out of these 10 winners, these recipes can be videographed and also audio. We can make it in a podcast.
and we can put it on a YouTube channel, or we can put it on social media where millions of views or millions of viewers will be able to access the recipes, and everyone can have a nutritious food not only in our community but also all over the world. So this was our idea. So thank you for saying. Gayatri, I have another question for you. So, what do you think is the USP of your idea? Our USP of the idea is not, yes, kids, we can tame them, like we can, we are the one who are like bringing up them, it's our lifestyle. So a mother or a father, whoever has the recipe, can cook and eat nutritious food. It's not only for the kids, but also for the other age groups where we need recipes, because I myself don't know like what I can cook with ragi. It's a dosa or that mix what I eat. So we get different recipes from all over, like Tamil Nadu, Kerala, Andhra. Like we conduct a competition all over India. We get different kinds of recipes, different kinds of nutritious food things, so we can eat the Indian taste. Fantastic. It is very important to bring the men to the kitchen, right? Radha Shukla ji. Yes, आपसे बात करते हैं आपके आइडिया के बारे में. थैंक यू. मेरा जो आइडिया आया वो यहाँ से था कि वक्ती की आवाज़ में हम लोग एक प्रोग्राम करते थे, तबीयत का ताना बाना. तो तबीयत के ताना बाने में जब कॉलिंग करते थे तो जो पेरेंट्स हैं उनके फ़ोन आते थे कि मेरी बेटी का पढ़ने में मन नहीं लगता है, चक्कर आते हैं उसको, तो ऐसी स्थिति में क्या करें. तो फिर कहीं ना कहीं ये लगा कि ये समस्या बढ़ती जा रही है, क्या करना चाहिए इसके लिए. तो मैंने एक रिसर्च करने स्टार्ट की. मैंने रिसर्च करने के लिए लड़कियों के जो ग्रुप था वो बनाए, और ग्रुप के साथ उनके साथ फोकस ग्रुप डिस्कशन करा, और उसके साथ उनके जो आइडियाई थे वो लिए, उनके जो पेरेंट्स थे उनके साथ में बात की. तो एक जो फाइंडिंग्स पूरा निकल के आया कि ये तो एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है कि अगर हम 50 लड़कियों के साथ में फाइंडिंग्स ले रहे थे तो उसमें 14 लड़कियों के पास ये समस्या थी कि उनको ये सारे ना तो पढ़ने में लग रहा था, थकान लग रही थी, चक्कर आ रहे थे, जो कि एक एनीमिया का साइन था. उस सारी फाइंडिंग्स को ले करके मैंने पूरी कम्युनिटी के जिन जिन 4 गाँव को मैंने चुना था उन गाँव में जा कर के फिर उस फाइंडिंग्स को उनके पेरेंट्स के साथ में शेयर किया कि देखिए जो मैंने अभी तक रिसर्च किया है, आपके बेटियों के साथ सबके साथ जो बातचीत की है उसकी ये फाइंडिंग्स हैं और ये डाटा निकल के आ रहा है. अब आप सबसे मैं सोल्यूशन चाहती हूँ कि इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम बोलते हैं कि बताते रहते हैं, और उनका पार्टिसिपेशन भी मुझे चाहिए था. अब पार्टिसिपेशन चाहिए तो कैसे हम प्रोग्राम्स को कह दे. एक होता है कि आपने रिसर्च किया, आपने बना लिया. एक होता है कि आपने कम्युनिटी के साथ पार्टिसिपेशन के साथ में अगर काम कर रहे हैं तो उनके इनपुट आने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो जब ये सोल्यूशन उनके बीच में गया तो फिर उसमें से एक के फादर ने कहा कि इसके लिए तो क्या होता क्या है, क्या खाए क्या खिलाए. तो फिर उस पर चर्चा हुई कि इन्हें अगर एनीमिया जैसी बीमारियों से बचाना है, पूरे घर की बात है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ जो है एडोलेसेंट के साथ में किया है, तो हो सकता है कि आप सबके बीच में ये प्रॉब्लम्स आए. तो इससे बचने के लिए आपको करना ये है कि आप सब अपना थोड़ा सा डाइट के बारे में बताएं कि क्या खाते हैं. तो उन्होंने अपने डाइट का सलूशन बताया कि हम ये रोज़ का मेरा खाना है. तो जो निकल के आया उसमें ज़्यादा से ज़्यादा था वो आलू और चावल और दालें, कभी कभी ये था. तो वो फिर था कि इसका रीज़न क्या है कि हम हरी सब्जियां और सारे जो न्यूट्रिशन है जो हमको नहीं मिल पा रहे हैं. तो यही था कि हमारी फसलें ऐसी होती हैं, सब्जियां कम होती हैं, तो फिर इसका सलूशन क्या होना चाहिए. तो उसका जब उन्होंने सलूशन दिया कि ऐसा करते हैं कि हम अपने घरों के आसपास जो जगह है उसमें हरी सब्जियों को आप बो सकते हैं. ये जब उनके साथ बातों में हम लोगों ने उनके साथ शेयर किया तो फिर एक आइडिया आया कि क्यों ना हम अपने घरों में क्यारियाँ बनाएं, और उन्होंने पूरी हरी सब्जियों की पूरी क्यारियाँ बनाई, और उसमें पूरा सपोर्ट महिलाओं का रहा, पुरुषों का रहा और एडोलेसेंट का रहा. तो इस तरह हमने फिर प्रोग्राम बनाया, घर में क्यारी सेहत न्यारी. तो इस तरह का ये आइडिया वहाँ से आया और मैंने इस तरह. दिस इज़ फैंटास्टिक. आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी इस कैंपेन के बारे में, and then you took over in order to create the campaign or program. But when I read your idea, there was one Saap Sidi game. What was it all about?
जो मैंने सांप सीढ़ी गेम बनाया था, क्योंकि लड़कियों को इन्वॉल्व करने के लिए डायरेक्ट आप एफजीडी करके उनसे किसी की प्रॉब्लम्स को पूछना भी मुझे उचित नहीं लगा था, क्योंकि हम उनसे जानना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सबका अपना इमेज होता है कम्युनिटी में भी, तो क्यों ना हम गेम के थ्रू उनके साथ जाएं। तो एक सांप सीढ़ी गेम बनाया जिसमें से हम उनके सिम्टम्स को उनके साथ शेयर कर पाए कि एनीमिया के क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या खाना होता है और कैसे। तो वो पूरा गेम उनके साथ किया, तो उनको एक एंजॉय में उन्हें समझ भी नहीं आया कि हमारा कुछ ऐसा पूछा जा रहा है, पर हम लोग उसकी फाइंडिंग्स लगातार कर रहे थे। तो हम लोग को भी बहुत आया मज़ा, क्योंकि हम एंगेज के थ्रू जा रहे हैं तो हमें चीज़ें फाइंड करना आसान होता है, और जो उनको था वो बहुत मज़ा, क्योंकि ऐसा कम्युनिटी में कोई करता नहीं था उनके साथ में। तो एक, क्योंकि जब हम 16-17 साल के होते तो सांप सीढ़ी खेल हमारा ख़त्म हो चुका होता है, कोई ला के नहीं देता लूडो कि आप खेलो। तो एक ये आइडिया आया था और इसको फिर मैंने प्ले किया। Thank you so much. Now can we have Arushi presenting her idea? हेलो, नमस्ते सभी को। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के ऊपर मैंने आइडिया दिया था, और ये एक खेल है, बहुत सरल सा खेल है। जब भी हम समुदाय में जाते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देखते हैं और महिलाएं जाती हैं, आती हैं समय पे, बहुत चीज़ें उन्हें सुनाई जाती हैं, वो सुनती हैं, बैठती हैं, आपस में बातें करती हैं। तो हमने सोचा उनको एक खेल खिलाते हैं, बहुत आसान सा खेल। एक महिलाओं को एक ग्रुप में बिठा दिया जाए, एक हाथ उनका यहाँ पे नीचे रहे, दूसरी महिला का ऊपर रहे, और दूसरा हाथ उनका ऊपर रहे और आगे वाली महिला का नीचे रहे। तो बस करना उनको ये है कि एक हाथ से इस पे ताली मारनी है दूसरी महिला के हाथ पे, और ऐसे ऐसे करके 4 लाइनें हैं। जैसे बचपन में मुझे याद है, हम एक खेल खेला करते थे, आओ मिलो शीलो शालो, ऐसा वो अभी तक याद आता है। तो खेल एक ऐसी चीज़ है जो बैठ जाता है मन में। तो 4 लाइनें बनाई थी कि स्वस्थ रहे लल्ला, मस्त रहे लल्ली, खेले खाए सही पोषण पाए, 1 महीने का बच्चा क्या खिलाएं बोलो। अब ये चलता रहेगा खेल, रिपीट करते रहेंगे, स्वस्थ रहे लल्ला, मस्त रहे लल्ली, खेले खाए सही पोषण पाए, और 1 महीने का बच्चा क्या खिलाएं बोलो, 2 महीने का बच्चा क्या खिलाएं बोलो, 3 महीने का बच्चा क्या खिलाएं बोलो। तो इससे क्या होगा, हर महिला को चांस मिलेगा बोलने का। तो 1 से 6 महीने पे तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, तो एक ही जवाब होगा। पर जब वो 6 से 7वें पे जाएगा, 7वें से 8वें पे जाएगा, तो कोई दलिया, कोई दाल का पानी, कोई भी जो चीज़ें हैं वो एक एक महिला बोले। अगर वहाँ पे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो बोले अच्छा देखो ये भी हो सकता है, कोई वहाँ पे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो एक तो आंसर उनसे खुद अंदर से आएगा उनके, तो वो चीज़ याद रहती है। और दूसरा जो सुनेंगे वो खेल खेल में, मस्ती मजाक में, तो हेल्दी इन्वायरमेंट भी होगा उस वक्त और उन्हें याद भी रहेगा। ये एक खेल बनाया था। आरुषि जी, एक बात बताइए जी। आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, जब आप ये गेम्स का इस्तेमाल करती हैं पर्टिकुलरली, जैसे कि ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, क्या आपका प्रोग्राम ज़्यादा इफेक्टिव होता है या आपकी इंफॉर्मेशन रीच ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है? इस तरह आपने एक्सपीरियंस किया है? बिल्कुल, डेफिनेटली किया है। और बच्चों के साथ ही नहीं, बड़ों के साथ जब हम महिला दिवस मनाते हैं या कोई भी कार्यक्रम करते हैं, अभी एक स्मार्ट का ही प्रोजेक्ट चल रहा है, हिंसा को नो, और उसमें भी कई तरह के खेल हैं, और महिलाएं बोलती हैं कि आप आइए तो आज क्या खिलाएंगे, आज क्या करवाएंगे, तो वो बैठती हैं वहाँ पे इसीलिए कि वो एक नया खेल खिलाएंगे हमें। और बड़े दुख होते हैं बोलते हुए, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, जिनको खेल की खिलाने की बात कर रहे हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो बहुत अंडर एज हैं। वो अभी भी जब हम कम्युनिटी में जाते हैं 16 साल की हैं, 17 साल की हैं, 15 साल की भी हैं, तो वो अभी उनका बचपन पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ है। तो वो एक उम्र में है जहाँ जिम्मेदारियाँ ऑलरेडी उन पे आ गई हैं, तो उनको मेंटली भी थोड़ा सा रिलैक्स होने की जगह चाहिए, जो उनको अपने घर पे उस वक्त नहीं मिल पा रही है। आसपास वाले उनको बोल रहे हैं ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो एक खेल उनको भी, क्योंकि हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात करते हैं, हम महिलाओं में डिप्रेशन, बच्चा होगा या लड़का होगा लड़की, इस पे भी उन पे कितना खींचतान होती है। तो जिस एनवायरनमेंट से जा रही है, खेल उनको वहाँ से भी निकालता है और एक जानकारी भी देता है। तो बहुत इफेक्टिव है, मैंने देखा खेल का तरीका। So that's the beauty of community radio station, because you know the community, your audience extremely closely. आशा मौर्य जी, अब आपसे डिस्कस करते हैं आइडिया। engaging community.
ऑन न्यूट्रिशन, जिसके बारे में हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए मेरी आइडियाज शेयर करते हैं। सुदृढ़ बालक स्पर्धा गांव पंचायत नगर पंचायत के माध्यम से बड़े पैमाने पे ली जानी चाहिए और उसमें जो अवार्ड देना है वो पोषण की कोटि या पोषण की देना चाहिए। जैसे कि अगर वो नगद कम हो तो उस बच्चे के न्यूट्रिशन पर या उसके माँ के न्यूट्रिशन पर खर्च होने की संभावना बहुत कम होती है। दूसरी मेरी आइडिया है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर हो, अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए कि उसकी शिक्षा के लिए न्यूट्रिशन या ब्रेस्ट फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, उसकी शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। तीसरी मेरी आइडियाज़ है पोस्टर प्रदर्शन, वो जो मैटरनिटी हॉस्पिटल में पोस्टर प्रदर्शन लगाना चाहिए। और चौथी मेरी आइडिया है जो हमारे यहाँ 12 से या नामकरण संस्कार होता है वहाँ पे जो गाना गाया जाता है उसमें पोषण का ही गाना गाना चाहिए। जब मैंने आपका आइडिया पढ़ा था उसमें गुड पेरेंटिंग के बारे में बात थी, इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात थी। हाँ। जब हम ये न्यूट्रिशन का पोषण की पोथी देंगे तो उसका उपयोग हम लोगों को शिक्षा देने में कर सकते हैं। Now can we have Kiran Deep Kaurji talking about the idea? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। रेडियो बुंदेलखंड का आइडिया एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे था कि किस तरह से हम कम्युनिटी को एंगेज कर सकते हैं एक बहुत ही सिंपल येट, जैसे मैम ने बात करी, सांप सीढ़ी के गेम से। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मुझे लगता है एक ऐसा टॉपिक है जिससे सिर्फ माताएं लिंक नहीं है, इंस्टेड आई थिंक द होल फैमिली इज वेरी मच इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। To be able to disseminate that information to the community, we decided कि हम एक बड़े फ्लैक्स पे सांप सीढ़ी का खेल प्रिंट करवाएंगे। हम एक फैसिलिटेटर या एक्सपर्ट, हेल्थ एक्सपर्ट के द्वारा इस गेम को खिलवाएंगे कम्युनिटी में, ताकि जो परिवार के मर्द हैं, सास ससुर, जो माता है जिसका बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है, उसके आसपास जितने भी रिश्तेदार, उसके घर में, उसके क्लोज क्वार्टर्स में जो लोग रहते हैं, वो भी जागरूक हो और उन्हें समझ आए कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितना इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए और माँ दोनों के लिए। तो ये हमारा आइडिया था। You're very right when you say that it's not just the woman who's feeding the child should be involved in a campaign, but the family as a whole. आपको क्या लगता है कितना इफेक्टिव हो सकता है जब हम फैमिली के ऊपर भी फोकस करें, ज्यादा तवज्जो फैमिली के ऊपर भी दिया जाए, कितना इफेक्टिव है? बहुत सिंपल सी चीज है। हमारे नॉर्थ इंडिया में ये होता है, आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री, बट जैसे ही बच्चा पैदा होता है वैसे बोला जाता है कि इसे शहद पिलाइए क्योंकि उसकी वाणी अच्छी रहेगी, व्हाटएवर रीजंस बिहाइंड इट आर, नॉट नोइंग कि कितना हार्मफुल है ये। यही प्रथा चेंज करके अगर हम ये एंड दिस ट्रिकल्स डाउन टू वेरी कल्चरल एलिमेंट्स आल्सो, यू नो, कि अगर पंडित ये बोले कि बच्चे को शहद ना पिला के उसे माँ का काढ़ा दूध पिलाएं सबसे पहले, जो एज अ मेडिसिन काम करता है। बेसिकली अगर हम जागरूक कर रहे हैं फैमिली को, वो माँ को, कई बार ऐसा होता है कि माँ को भी नहीं पता होता है कि किस तरह से, जो छोटी एज में मदर्स बन जाती हैं लेडीज, वो इतनी अवेयर नहीं होती हैं कि किस तरह से न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना है अपने बच्चे के लिए। तो अगर फैमिली जागरूक रहेगी, अगर उसका पति जागरूक है, अगर उसका ससुर जागरूक है, वो इस तरह से काम करेंगे कि बच्चा कुपोषित ना हो। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्णा जी, आपसे बात करते हैं आइडिया के बारे में।
हमारा आइडिया था मैम इसके अंदर कि स्तनपान के लिए महिलाओं को जागरूक करना। तो सबसे बेस्ट हमारे लिए आइडिया था कि हम लोग प्रोग्राम करते थे जिसके अंदर हमारे प्रशासन की तरफ से CDPO मैम आती थी हमारे पास, जो कि पोषण स्तनपान माह चलता है 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक जो हम मनाते थे। उसमें मैडम आती थी जो कि प्रोग्राम करती थी रेडियो के ऊपर, और उनसे हमारी बातें होती थी कि मैम ये स्तनपान के ऊपर कैसी मतलब है और कैसे रहता है। तो उन्होंने बताया कि भाई ये काफ़ी मतलब गंभीर समस्या है, इसे मतलब अगर हम जागरूक करते किस प्रकार से करता। IT का आइडिया वहाँ से लेता और कुछ हमारी टीम का आइडिया था। तो हमारा आइडिया ये था कि हम लोग घर घर जाकर, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको पता होता है, वो उनको अच्छे से अगर हम लोग जागरूक करेंगे तो वो घर घर जाके महिलाओं को स्तनपान के बारे में जागरूक करेंगी और इस प्रकार से वो हम इसको ठीक कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। At this point of time, I want to share an instance with you. We were doing a research in Mewat, and the women respondents, this research was funded by Indian Council of Social Science Research. Now, the women respondents said in the questionnaire that earlier we used to depend on the leftovers, the remaining food while having dinner. And we used to have dinner only when the male counterparts have finished the dinner. But after listening to Radio Mewat, we got to know how important is our own health. And we should give importance, priority to our own health. And this started not depending on the leftover food, but eating fresh food. And it improved their health. Now coming from here, when we go back to National Family Health Survey, which is going to give importance to exclusive breastfeeding, fighting deficiency in nutrition, and having adequate food for the people. Now, I want to ask you people, जब हम कम्युनिटी रेडियो के बारे में बात करते हैं तो क्या कम्युनिटी रेडियो, आप लोग अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि क्या कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस जेंडर में मेल्स को टारगेट करते हैं कैंपेनिंग में ताकि न्यूट्रिशन पे तवज्जो दी जाए? गायत्री जी आप बताइए प्लीज़। Okay, so when we look back at the figures that we have in the National Family Health Survey, it is going to pay more attention towards nutrition now in the 6th version. Now, do you think community radio stations can take a lead and improve those figures? Can community radio stations, in your experience, have you ever targeted male members in the family in order to, play an effective part in nutrition building? I'll first answer to your first part of the question, that whether community media can be an effective medium to increase the rise of the numbers in the nutrition. I would say yes, because like mass medias and other medias, when we compare, because it's community media, whatever is to so I'm comparing with the other medias, they may give an advertisement or they may play some jingle for some seconds and they will move on to the entertainment part. But community media is not like that. We go inside the community and we are there in the part of the country where the most vulnerable societies are there and where the mass medias or the other medias won't look after us. Like even fishermen, our issues or our local news are like, it is just a news. It is just a column news. But for us, it is a livelihood. So when we look on, when the community media works on those parts, we go for narrowcastings, we go for the community media, we go to schools, we meet people on daily basis, we take a topic and we go to the people, we concentrate on each and everyone. Whoever has WhatsApp, they can comment on, they can give feedback on that. Whoever has phone, they can call to us. Who doesn't have anything, we go to them and we take bites and we meet them in person, we talk to them in person. We know our community, even district administration or panchayats or municipalities, they come to us and they ask our opinions on like what the communities like they need. When they want a Poshan Abhiyan to be conducted, they come to us. They come and give interviews. We go along with the Anganwadi employees. So they get more attention
representation. We go as ambassadors of the people. So I think community media can play a very vital role, and I would say that only community media can play a vital role. Other medias, they can play advertisements. That's it. I agree totally. राधा जी, आप अपने एक्सपीरियंसेस से बताइए कि आपने अपने कैंपेन्स में सिर्फ औरतों को नहीं, आदमियों को टारगेट किया होगा, और कितना इफ़ेक्टिव रहा वो कैंपेन, क्या रिएक्शंस आए आदमियों की तरफ से आपके पास? जब एक पेरेंट्स की बात आती है तो वहाँ पे माता पिता दोनों ही आते हैं, और जब फाइंडिंग्स उनके बीच रखी तो मेरा यही था कि वहाँ माता पिता दोनों ही उसमें आए। तो दोनों का ही जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो घर का पोषण बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि पोषण में अगर सब्जियां लाने का जिम्मेदार बाहर बाज़ार जाने का, क्योंकि मैं ये बता दूं कि मैं कानपुर देहात के रूरल एरिया में काम करती हूं, तो जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो वैसे ही हैं कि मार्केट में महिलाओं को जाने का अवसर नहीं मिलता है। तो जब पुरुष ही जाता है बैग लेकर के सब्जियाँ लाना, तो वो कई बार ऐसा होता है कि वो महिलाओं से नहीं पूछते हैं कि क्या लाना है, और वो उन्हें जो दिखता है कि सस्ता था, पूरे परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, वो लेके आते हैं। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस होने के नाते ही मैंने उस कम्युनिटी में जो फाइंडिंग्स रखी तो इसका सलूशन उनसे ही लिया। करने को मेरे भी विचार में था, मैं कर सकती थी, पर अगर मेरे को कम्युनिटी में दोनों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए तो फिर निश्चित रूप से पहला प्रायोरिटी उनको देना होगा कि आपसे निकल के आए, तो वो प्रोग्राम बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ना कि जब हम अपने आप से आइडिया अपना देते हैं तो वो सुनते तो हैं, किसी किसी को पसंद भी आता है, लेकिन जब आप कम्युनिटी से बेस से उठाते हैं और उनसे पूछते हैं, उनको अपने पास लाते हैं, तो उनको भी एक तो प्रोग्राम सुनने का भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी भी वॉइस है उसमें। और इसके साथ में हम कितने प्रोमो चला लें, कुछ भी कर लें, लेकिन मेरा पर्सनली जो एक्सपीरियंस कहता है कि जब आप कम्युनिटी को एंगेजमेंट की बात करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, आप उनके प्रोग्राम्स की नैरो कास्टिंग करते हैं, उस ग्रुप में तुरंत आपको उसका फीडबैक मिलता है। तो इस तरह मेल और फीमेल दोनों का ही, यानी मैं तो कहती पूरे परिवार का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो प्रोग्राम बहुत बेहतर होता है। थैंक यू राधा जी। आरुषि जी, आपसे एक क्वेश्चन है कि जब आप कम्युनिटी से एंगेज करते हैं तो किस तरह की परेशानियों का सामना आप लोगों को होता है? आई एम श्योर कुछ परेशानियां होती होंगी, सो व्हाट अबाउट देम? मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल बताती हूँ। एक बच्चों का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें जो छोटे बच्चे हैं 3 साल के ऊपर, उनके साथ बिहेवियरल चेंज के ऊपर एक कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ 4 गांव में ग्रुप्स बने हुए हैं, आंगनवाड़ी में जाते हैं और उनको खेल के माध्यम से सिखाते हैं। तो अभी हम रिसेंटली एक गांव में गए और वहाँ जो हम पैटर्न है कि माँ भी आती है, बच्चे भी आते हैं, दोनों खेल खेल में। माँ को हम कहते खेल खेल में आप कैसे और सिखा सकते हैं अपने बच्चों को। तो अब वहाँ पे हम गए, 3 महिलाएं आईं, तो उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे कि जो हमारी एक गेस्ट आई हुई थी उस वक्त, कि आप लोग इतने महीने से आ रहे हो, 8 महीने से चल रहा है, आपको क्या लगता है? तो बहुत शर्मा रही थी, बात नहीं कर रही थी। तो अब वो क्यों नहीं बात कर रही थी? हुआ ये था कि आदिवासी समुदाय है, कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे शादियाँ नहीं होती, वहाँ पे मेले लगते हैं, जो जिनको पसंद करते हैं साथ में रहते हैं, बच्चे हो जाते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अलग हो जाते हैं, जिसमें कोई तलाक की ज़रूरत नहीं है। होता ये है कि बच्चे माँ के पास नहीं रहते, बच्चे पिता के पास रहते हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों। और जिन बच्चों के साथ हम काम कर रहे थे, बहुत छोटे बच्चे हैं, 1 महीने में 3 लोगों की माँ बदल गई, एक गई और 3 आ गई, अलग अलग माएँ। अब उनको भी हमको बेस से शुरू करना है वापस से काम। और ऐसा, ये कोई ऐसी असामान्य बात नहीं है कि कहीं कहीं हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है, बहुत आराम से हो रहा है। तो इस केस में थोड़ा मुश्किल होता है काम करना बच्चे के लिए। हम अगर सिर्फ पोषण की बात करें, उसकी मेंटल हेल्थ, माँ की मेंटल हेल्थ, और जो बच्चे से अलग हो गई उनकी हेल्थ, इतने सारे एस्पेक्ट जुड़ जाते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। हम एक आंगनबाड़ी में गए, 5 भाई बहन हैं, सबसे छोटी बहन मालनरिश्ड है, बहुत ज़्यादा, 3 साल की है, बिल्कुल देख के नहीं लगेगा। और उसका जो बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई है, 14 साल का है, वो ट्रेन में जाता है, कमा के लेके आता है। 10 साल की बहन है, वो 5 भाई बहनों का खाना बनाती है, क्योंकि माँ चली गई छोड़ के और पिता ड्रिंक करते हैं, पीते हैं,
तो वो कहीं पे रोड पे पड़े होते हैं पी के। और ड्रिंकिंग एक इतनी ज़्यादा बड़ी समस्या है कि जब भी हम किसी भी क्षेत्र में काम करने जाते हैं, पोषण हो, घरेलू हिंसा हो, शिक्षा हो, सबसे ज़्यादा हमारा टकराव इसी से होता है कि पी के यहाँ पे आप पड़े हैं, कौन संभालेगा, कौन बात करेगा। कोई तो तंबाकू पी रहे हैं, 5 साल 6 साल के बच्चे भी स्कूल्स में जाते हैं तंबाकू की आदत पर। तो ये नशे वाली आदत सबसे ज़्यादा हर इशू में हमको, मतलब इस पे बात करें तो इसको साथ में कनेक्ट करके ही करना है। तो ये बहुत बड़ी समस्या आती है। थैंक यू। आशा जी, आप बताएं किस तरह की परेशानियों झेलनी पड़ती है, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब आप कम्युनिटी से एंगेज करते हैं? फिर से वही बात है, जो औरतें अपनी शादी हुई है वो लड़कियाँ आ नहीं पाती हैं, सासें उन्हें आने नहीं देती है, उनकी सास जो वो प्रोग्राम में या बाहर आने नहीं देती है। पोषण किट जो आंगनवाड़ी से मिलता है वो भी वो पति को खाने को खिलाती है, क्योंकि बोलती है उसे काम जाना है। तो वो पोषण किट भी वो इस्तेमाल नहीं कर पाती है और वही बचा हुआ खाना वो खाती है। जैसे हम नैरो कास्टिंग करते हैं और पर्सनल हमें मिलते हैं तो थोड़ा सा बढ़ने लगा है, बाहर देश में और पोषण नहीं देगा, ऐसी थोड़ी समस्या तो होती है जैसे नैरो कास्टिंग करते हैं। थैंक यू Kirandeep Kaur ji. Now, tell me one thing. The audience that you are catering to, they already have exposure to other forms of media. What kind of information and entertainment need do they have that they come to your radio station? हम रेडियो को देखकर में बोलते हैं कि हमारा रेडियो इज बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड इट्स जस्ट बाय देम। द ओनली डिफरेंस आई थिंक कम्युनिटी रेडियो और एक कमर्शियल रेडियो में जो मुझे लगता है मेरे नज़रिए से, तो ये है कि हम लोग कम्युनिटी की बात करते हैं। हम लोग अगर पुल गिर गया सपोज गाँव में, अब मैं बाहर से आ रही हूँ 60 किलोमीटर दूर से, मुझे तो नहीं पता, पर कम्युनिटी रेडियो पे मैं सुन सकती हूँ कि ये वाला रास्ता नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे पुल गिरा हुआ है। अब एक कमर्शियल रेडियो मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। वन इज दैट आई थिंक understanding the local problems and bridging the gap between the receptors and the ones who are providing this information. एक तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, it's acting as a bridge between these two things. The other thing, मैं एक किसान हूँ, मैं रोज सुबह अपने खेत में जाके 10 घंटे 8 घंटे 6 घंटे काम करती हूँ। तो मुझे बॉलीवुड गीत बहुत पसंद है, पर मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर मेरी भाषा का कोई गीत मुझे सुनाई दे रहा है रेडियो पे। तो अगर जब मैं गांव में जाती हूँ मुझे बुंदेली लोकगीत सुनाई देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, या मुझे पंजाबी लोकगीत सुनाई देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आई थिंक एंड कम्युनिटी के लोग बहुत exposed to that kind of media and that kind of information, I think हम लोग बहुत सिंपल और सीधे हो गए हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए कि it caters to very simple needs for the community and that's the reason why I think कि कम्युनिटी के लोग कम्युनिटी रेडियो को प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ यूट्यूब या कोई और मीडिया का माध्यम। I'm sure audience का interest level इन बातों ने बढ़ा दिया होगा। So we have come to the end of the discussion. It was really great listening to all these opinions, specifically when all of them are so closely related to the communities. Yes, these voices are important. Whether it is palak, chane ka saag or ambade ki bhaji, we all take pride in our indigenous nutritional resources, and it is extremely important to build the capacities of communities and let them take the ownership and be responsible for their own development. And for this, all of them sitting here right now are doing a great job, and they are doing real hard work. Thank you so much. I hope you enjoyed the session. Until we meet next time, stay tuned. Bye-bye.